Well, praise the Lord this morning. Are you ready to praise Jesus? He alone deserves all the glory, honor, and praise. Amen. Here I am, I've come to find you. Here I am to seek your grace, to bring to you an offering. I have to ask myself one thing: how can I do anything but praise? I praise. Sing. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. Here I am, I've come to thank you. Here I am, a life you've changed, because you gave your life for me. You crucified your son for me. How can I do anything but praise? I praise. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. Can you confess it with us this morning? You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. I want my life to praise you. He is worthy to be praised. Amen. Lord, we lift you on the high place this morning, God. You alone deserve that place, God. And as we worship you, we pray, God, you would inhabit in the praises of your people, God. We crown you, God, as the King of Kings and the Lord of Lords. We place you on the highest place, for you are the great high priest. We place you high above all else. As we come to you to worship at your feet, बिठाते हैं सबसे ऊंचा तू है महायाजक, बिठाते हैं सबसे ऊंचा, और चरणों में आकर आराधना करते हैं। प्रभु, सबसे ऊंचा स्थान हम तुझे देते हैं। Oh God, we worship you, Jesus.
आसमां से भी तू ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। आसमां से तू ऊंचा है, आसमां से भी तू ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। गाते हालेलुया, गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान। गाते हालेलुया, तू महिमा प्रधान। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान। गाते हालेलुया, तू महिमा प्रधान। Oh yes, God, we worship you. Oh, we praise your name, Jesus. सारे दूतों की स्तुति तू ही है, हर जुबां पर भी नाम तेरा है। सारे दूतों की स्तुति तू ही है, हर जुबां पर भी नाम तेरा है। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान। गाते हालेलुया, तू महिमा प्रधान। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान। गाते हालेलुया, तू महिमा प्रधान। तू महिमा प्रधान, तू महिमा प्रधान। Oh, we worship you, Jesus. We lift your name high, God. We worship that name, name above all names, that's worthy to be praised. That name that deserves all the glory. That name before whom the elders bow and the angels worship. That name of Jesus is worthy to be praised this morning. We lift your name, Jesus. We lift your name. Oh, worship you. Well, good morning and praise the Lord. गुड मॉर्निंग और परमेश्वर की स्तुति हो। This is the day that God has made, and He's called you and me to celebrate His presence. ये वो दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है और हमको उसकी उपस्थिति में बुलाया कि हम उत्सव मनाएं। It's such a privilege to come into your homes and praise and worship God with you.
ये कितना बड़ा सौभाग्य कि आप सबके घरों में आकर हम परमेश्वर की आपके साथ मिलकर स्तुति करें। And I'm so grateful to our pastor for giving me this opportunity to deliver the word of God. और मैं पास्टर को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज आप सबके साथ वचन से बात करूँ। Like God, He is good and His mercy, it endures forever. कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। His mercies are new every morning and great is His faithfulness. उसकी करुणा हर एक सुबह नई है और उसका विश्वास, वो परमेश्वर विश्वास योग्य है। And the good news about God is that He never gives up on you. और भली वो सुसमाचार परमेश्वर के विषय में ये है कि वो कभी आप पर हार नहीं मानता। Maybe everybody around you may give up on you. कि आपके इर्द गिर्द जितने लोग होंगे शायद वो आप पर हार मान चुके Maybe होंगे, you may give up on yourself. या फिर आपने अपने खुद पर हार मान चुके होंगे आप। But our God, He loves you लेकिन हमारा परमेश्वर वो आपसे प्रेम करता and है He's never going to give up on you. और वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं और आप पर कभी हार नहीं मानेगा। Amen. Amen. We serve the God who gives us an identity. हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो हमें एक पहचान दिलाता है We serve a God who gives us more than what we deserve. कि हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो हम जिसके योग्य है उससे कई ज्यादा हमें वो देता है। He's a loving Father and all He wants to do is put a smile on our face. वो एक प्रेमी पिता है और केवल वो चाहता है कि वो हमारे चेहरे पर एक मुस्कान रखे। He wants to straighten our lives. वो हमारे जीवन को सीधा और सही करना He चाहता wants है। us to yield unto Him वो चाहता है कि हम अपने आप को सौंप दे उसके so अंदर, we might live in the fullness that He has for us. कि हम उसके अंदर उस पूर्णता में जी पाए जो उसने हमारे लिए रखी है। Amen. आमीन। Like this morning, I want to share with you what the Lord laid upon my heart. आज सुबह मैं बात करना चाहती हूँ उस विषय में जो परमेश्वर ने मेरे दिल में रखी है। And let's just look at a scripture before we dive in. आगे बढ़ने से पहले हम वचन की ओर जाएंगे। We look at Matthew chapter 14, मत्ती इसका 14वां अध्याय verses 29. और 29वां पद। And He said, "Come." And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. उसने कहा, आ। तब पतरस नाव में से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। Come, let's just bow our heads in a prayer. आओ हम प्रार्थना करें। How we thank you, Father, for giving us this time in your presence. पिता, हम कैसे धन्यवाद दें प्रभु, आपने आपकी उपस्थिति में ये हमें समय दिया। Lord, speak to our hearts. प्रभु हमारे दिलों से बात करें, Anoint our ears that we may be able to hear from you. हमारे कानों को अभिषेक करे ताकि प्रभु हम आपसे सुन पाए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते Amen. हैं। आमीन। Well, God, He is wonderful. परमेश्वर वो तो अद्भुत है। And the scripture says is about Jesus is with His disciples. और ये जो वचन जो हमने पढ़ा, इस वचन में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ है And it's getting pretty late. और काफी अब देर हो रही है। So He sends His disciples out in a ship. और फिर यीशु मसीह अपने जितने शिष्य हैं उनको उस नाव में बिठाकर आगे भेजते हैं। And Jesus, और यीशु He मसीह goes for His personal time with God. वो अपने वैयक्तिक परमेश्वर के साथ के समय के लिए चले जाते हैं। He goes to pray with God. वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने जाते हैं। It's so wonderful because Jesus, although He's the Savior, He's the Son of God, He still is going into His personal space to pray. ये कितनी अद्भुत बात है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर होने के पश्चात वो अपना एक वैयक्तिक समय परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बिताने It's के लिए just उतार showing है। us the importance of how important prayer is. ये बात बस हमें यही बताती है कि कितना महत्व का है कि प्रार्थना में समय बिताना। Well, Jesus is the Savior of the world. कि यीशु मसीह जो जगत का उद्धार करता है, He still had the time to pray. कि उनके पास अभी भी समय था इस वक्त कि वो प्रार्थना करें। Which world are you and me saving that we don't have time or we can't make time for prayers? कि हम, तुम और मैं मिलकर हम कौन से जगत का उद्धार कर रहे हैं कि आज हमारे पास समय नहीं है कि हम प्रार्थना करें। But it's beautiful how Jesus lives by an example. कि ये कितना खूबसूरत इस वचन में देख सकते कि यीशु मसीह एक उदाहरण के तौर पर जी रहे हैं So यहाँ। Jesus goes to the mountain to pray, तो यीशु मसीह उस पर्वत की ओर जाते हैं प्रार्थना करने and He sends His disciples out in a ship. और वो अपने शिष्य को उस नाव में बिठाकर आगे भेजते हैं। So the ship now is in the midst of the sea, अब वो जो जहाज है, जो नाव है, वो अब उस समुद्र के बीच पहुंचा है and there's a storm that hits the ship. और एक तूफान है जो उस जहाज के टकराव में आता है। Now, it's a common tendency for the disciples to think that Jesus sent me on this ship
and now there's a storm that's hitting the ship. और ये सामान्य मानसिकता शिष्य की ऐसी बनी थी कि यीशु मसीह ने हमें जहाज पर बिठा दिया है, अब ये तूफान आ गया देखो। And they were in a state where they were afraid, और वो ऐसी दशा में आए जहाँ पर सब वो भयभीत हुए, they were stuck. वो फंस गए थे वहाँ। What else can somebody do in the middle of the sea when a storm hits you? और समुद्र के बीच जब तूफान से आप घिरे हुए हो तो कोई इंसान भला क्या कर सकता है? The disciples were afraid, शिष्य डर गए थे they were vulnerable, और वो काफी ऐसे हालात में आ गए थे and they were just there in the ship, और वो बस उस नाव में फंसे हुए थे, thinking, ये सोचते हुए, probably thinking, शायद ये सोचते हुए that Jesus sent us in the ship and now we are hit by a storm, and where is he? कि यीशु मसीह ने तो हमको उस नाव पर बिठाकर आगे भेजा, अब तूफान आया है और अब यीशु मसीह है तो भी कहाँ? Like sometimes we church folks think that as soon as we accept Jesus, there's no storm going to come in our lives. कभी कभी हम सारे लोग जितने कलीसिया में होते, कभी हम भी ये सोचते कि यीशु मसीह ने आज हमको उद्धार किया है, हमको चलाया है तो तूफान शायद नहीं आएगा। A moment that we've received salvation, we feel that it's going to be the journey is going to be like a smooth highway. या फिर जिस पल हमारा उद्धार होता है तो हम यही सोचते कि अब हमारा यहाँ से जो सफर रहेगा वो काफी कुशल और कोई भी तूफान का सामना नहीं करना But even पड़ेगा। the greatest of men of God have even the greatest of men of God have a place where they are hit by the hardest of the storms. लेकिन हम देख सकते हैं एक उदाहरण के तौर पर कि परमेश्वर के जितने बड़े बड़े लोग भी क्यों ना रहे हैं, उनके जीवन में भी उनको तूफानों का सामना करना पड़ा है। And it's wrong to say, or it's wrong to put yourself in a situation thinking that nothing wrong is going to happen, no storm is going to come your way. और ये गलत होगा अपने आप को ये सोचना कि हमारे जीवन में कोई भी तूफान हमारे सामने नहीं आएगा। But what happens here is लेकिन इस वचन में हम देख सकते कि क्या हुआ that the storm hits the boat. कि वो जो तूफान उस जहाज के टकराव में आया। And it's important to realize when a storm hits our lives, और ये जरूरी है हमें ये समझना कि जब कोई तूफान हमारे जिंदगी में आता है how we react and how our attitude is in that situation. तो ऐसे हालात में हम किस प्रकार का जवाब देते हैं या हमारा रवैया किस प्रकार का है। We can sit there and crib about everything. हम वहां पर बैठे रह सकते हैं और हर एक बात के बारे में कुड़कुड़ा सकते We हैं। can be angry with God, हम परमेश्वर के ऊपर क्रोधित हो सकते हैं, which is so many people in the Bible, when things went wrong in their lives, they got angry with God. जो कि हम बाइबल में देख सकते हैं। जब लोगों के जीवन में बातें सही नहीं हुई तो वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध क्रोधित हुए, They get bitter तो वो कड़वाहट में आ जाते हैं, and they lose hope. They're faithless. तो फिर वो अपनी आशा गवा देते हैं और वो विश्वास अपना उसको खो देते हैं। It's a losing battle if you're fighting against God the Almighty. और ये ऐसी जंग है कि जिसको आप कभी जीत नहीं सकते हो अगर वो जंग आप परमेश्वर के खिलाफ लड़ रहे Because हो। God is not here to kill you or destroy you or keep sending storms in your life. क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर इसलिए नहीं है कि आपको वो मार दे, आपका नाश करे और आपके जीवन में तूफान के बाद एक तूफान भेजे। But He's here to protect you from, He's here to bring you out of every storm. लेकिन परमेश्वर यहाँ इसलिए है ताकि वो आपके जीवन के हर एक तूफान से आपको बाहर And निकाल it's ले। beautiful how the scripture puts it across. अरे बहुत खूबसूरत है कि जिस प्रकार इस वचन में इस बात का वर्णन किया So है। the disciples are in the boat and they are hit by a storm, तो जो शिष्य है वो नाव में है और वो उनका सामना एक तूफान से होता है and they see somebody coming towards them. और वो देखते हैं उस समुद्र के बीच में कि कोई ऐसा एक है जो उनके पास आ रहा है And they're freaked out. They और- think it's a ghost. और वो उसे देखकर वो डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई भूत है या कोई आत्मा है। Now, already in a situation when you're in fear, anything unknown, anything different, you always get scared of it. और ऐसे सामान्य बात है कि जब आप कोई डरी हुई ऐसे हालत में हो, जब आपको काफ़ी डर महसूस हो और ऐसी कोई अज्ञात बात या अज्ञात चीज़ वहाँ पे अगर घटती है तो आप और ज़्यादा डर जाते हो। Already our mind starts thinking in the negative direction. Oh, this is what's going to happen. It's a ghost. It's bad. It's evil. This is wrong. और ऐसी दशा में हमारा मन एकदम पूरी तरह से नकारात्मक विषय में सोचने लगता है कि शायद ये भूत है या फिर कुछ गलत होने वाला है। And Jesus, और यीशु He's मसीह still there. He's walking there. वो वही है, वहाँ पर चल रहे And the हैं। beauty about this, and I feel so special when I think about it, और इस बात की सुंदरता ऐसी है और मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती है ये बात that in the middle of our storm, कि हमारे तूफानों के बीच there are times where we feel that, where are you, Lord? कि ऐसे समय आते कि जहाँ पर हमें लगता है और हम पूछते कि परमेश्वर तू कहाँ है, Lord, I'm in a state where I can't see you. कि प्रभु मैं ऐसी दशा में हूँ जहाँ पर मैं प्रभु आपको देख नहीं पा रहा हूँ, Or Lord, I'm stuck here and where have you been? You told me to come here and you're not here no more. कि प्रभु मैं यहाँ पर फंसा और प्रभु आपने मुझे बोला था कि आप रहोगे लेकिन आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे But हो। Jesus always shows up. लेकिन यीशु मसीह हमेशा दर्शन देते और वह He प्रकट
प्रकट होते हैं is here. कि यीशु मसीह यहाँ He है। is in the middle of everything in your life. वो आपके जीवन के हर एक बातों के बीच में मौजूद He's है। in middle of every storm and every season and every low time and every high time in your life. आपके जीवन के हर एक मौसम में, हर एक तूफान में, हर एक ऊंचे और नीचे, हर एक परिस्थिति में यीशु मसीह You मौजूद may है। not be able to feel him or recognize him or know him or understand him, आप शायद उसे महसूस नहीं कर पाओगे, शायद पहचान नहीं पाओगे या समझ नहीं पाओगे, but let me tell you, he is here. लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो यहाँ है। He is right, even closer than your very breath. कि आप जो सांस लेते हो उससे भी ज्यादा कई नजदीक वो आपके हैं। He understands things you don't understand. आप जो बातें समझ नहीं पाते हो यीशु मसीह उसे समझता है। He understands your situations, your circumstances even better than what you would understand. जो आपके हालात और परिस्थितियां हैं जिसको आप समझ सकते हो उससे कई ज्यादा अधिक यीशु मसीह समझता Because है। our Jesus क्योंकि हमारा यीशु has gone through it all. वो उन सारी बातों से गुजरा है। He's gone through all the trials, he's gone through all the tribulation, he's gone through all the what we feel as humans. एक मनुष्य के तौर पर जो जितनी भी छल कपट समस्याएं परीक्षाओं से हम गुजरते So- यीशु मसीह उन सब से गुजरे So हैं। he understands our frame. तो वो हमारी मनस्थिति को समझते हैं। He knows us better than we know ourselves. जितना हम अपने आप को समझ सकते हैं उससे कई ज्यादा यीशु मसीह And समझते हैं। today, in this morning, this week, this season of your life, if you feel that you are all alone, और ये समय इस सुबह या फिर इस मौसम के दौरान अगर आपको लगता है कि आप अपने आप को काफी अकेले हालत में महसूस कर रहे हो or you are in a midst of a mess, या फिर आप पूरी खराबी के ऐसी हालत के बीच फंसे हुए हो or something has hit you so bad, या ऐसी कोई बात जिसका टकराव आपके साथ इतना बुरा हुआ है, let me encourage you this morning. मैं आप सबको आज सुबह उत्तेजन करना चाहती हूँ। Jesus is there. यीशु मसीह वही है। He is there यीशु मसीह है यहाँ in every moment of your life. आपके जीवन के हर एक पल में, Have no fear. इसलिए डरिएगा नहीं। Our Savior is here. हमारा उद्धारकर्ता यहाँ है। Hallelujah. हालेलुया। Let's move forward. आगे बढ़ते हुए And suddenly Jesus comes up to them and Jesus shows up in every storm. और अचानक से यीशु मसीह उनके सबके सामने प्रकट होते और यीशु मसीह हर एक तूफान में आ जाते हैं। It reminds me of another scripture, it reminds me of another incident in the Bible. और इस बात से मुझे एक और वाकया पवित्र शास्त्र से याद आता है And it talks about Shadrach, Meshach, and Abednego. और वो बात है शद्रक मीशक और अबेदनगो के विषय And में। the king at that time और उस समय जो राजा थे had passed a rule उन्होंने एक आदेश या हुक्म या पैमाना छोड़ा था that they had to worship and bow down before him. कि उन सबको उसके सामने दंडवत करना है और उसकी आराधना करनी But है। Shadrach, Meshach, and Abednego लेकिन शद्रक मीशक और अबेदनगो decided not to. उन्होंने ये तय किया कि वो ऐसा नहीं Because the करेंगे word of God said that you shall not have any other God or bow down before any other God क्योंकि परमेश्वर के other than वचन me. क्योंकि परमेश्वर के वचन में कहा गया था कि आप किसी भी दूसरे को दंडवत या उसकी आराधना नहीं करोगे यहोवा परमेश्वर के सिवाय। And so Shadrach, Meshach, and Abednego, तो शद्रक मीशक और अबेदनगो they stood in front of the king and they refused to bow. तो उन्होंने इनकार किया कि वो राजा के सामने झुककर सजदा नहीं करेंगे। And what the king does और राजा फिर क्या करता है? is that he punishes them by putting them in a fiery furnace. उनको ऐसी सजा देता है कि उनको एक धधकती भट्टी में डाल देता है। Now the thing about them अब उनके विषय में बात ऐसी है कि was that they said something very amazing and very inspiring. उन्होंने ऐसी बात कही जो काफी प्रेरणा देती है। They said, even if our God does not save us, उन्होंने कहा कि यदि हमारा परमेश्वर हमको बचाएगा नहीं भी तो, which is never the case, he's always here to save us. जबकि सच्चाई ये कि परमेश्वर हमेशा हमारा बचाव करता But है। their thoughts, they had their minds and they said that even if our God does not save us, लेकिन उनकी विचार ऐसी थी कि अगर यदि परमेश्वर हमको बचाएगा भी नहीं इस हालात में, we rather die serving our God तो ये बेहतर है हमारे लिए कि हम मरे लेकिन अपने परमेश्वर की सेवा and करते not हुए, bow before anything else. लेकिन किसी और चीज यहोवा के सिवाय हम उसके सामने सजदा Wow, नहीं what करेंगे। a statement, such a powerful statement. कितना सामर्थ्यवान ये वाक्य कहा था उन्होंने। And when I was reading this, I said, Lord, give us that faith that, we may be able to stand for your name in that way. कि जब मैंने इस वचन को पढ़ा था उस समय तब मैंने परमेश्वर से एक प्रार्थना की कि परमेश्वर हम सबको उतना विश्वास और सहाय दे कि हम उतने सामर्थ्य से विश्वास में खड़े रह That we पाए will not bow to our fears, we will not bow to our needs, but we will stand for the name of the Lord, even if it costs us कि anything. हम अपने डर अपने भय को अपने जरूरत के सामने सजदा ना करें लेकिन हम परमेश्वर में विश्वास में खड़े रह So पाए। anyways, the king throws them or puts them in the furnace, तो ऐसा होता है कि उस धधकती भट्टी में राजा उनको झोंक देता है and they're walking in the furnace. और उस भट्टी में वो तीनों चल रहे हैं। And the best part about it और is, इस बात की सबसे उत्तम विषय ऐसी थी कि the king asks
his people a statement. वो राजा अपने जितने लोग हैं उनसे एक वाक्य पूछता है, एक बात पूछता है। Didn't we put 3 people inside? क्या हमने 3 लोगों को अंदर नहीं डाला था? Didn't we put 3 people inside? क्या हमने 3 लोगों को अंदर नहीं डाला था? Who's the 4th one? ये चौथा कौन है उनमें? Who's the 4th one? वो चौथा कौन है? Let me tell you who's there behind you. मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि कौन है आपके पीछे? Who's standing in front of you? आपके आगे कौन खड़ा है? Who's surrounding you? कौन है जो आपको घिरे हुए रखता है? Who's there in that furnace? कौन है वो जो आपकी इस भट्टी में रहता है? Who's there in those times of trouble? कौन है वो आपके मुसीबत के समय में रहता Who's है? there in that fire? कौन है उस आग में? Who's there in that mess? कौन है उस पूरी खराब हालत Who's में? there in that valley? कौन है उस खाई में? Who's there in that storm? कौन है वो उस तूफान में? Who's there when your needs are not met? कौन है वो जो उस जगह पर होता है जब आपकी जरूरत पूरी नहीं Who होती? is there? कौन है Let me वहाँ? tell you, our Jesus, He's always there. मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो यीशु मसीह हमारा वो हमेशा होता है। Jesus, He's always going to show up. यीशु मसीह हमेशा प्रकट होंगे। He's not going to leave you there. वो आपको ऐसे ही वहाँ पर नहीं छोड़ेंगे He's not अकेले। going to let you burn. वो आपको जलने नहीं देंगे। He's not going to leave you in a storm. वो आपको तूफान में ऐसे नहीं छोड़ेंगे। He's not going to let you toss. वो आपको ऐसे गोते खाने के लिए He नहीं is छोड़ेंगे। here. वो यहाँ पर His मौजूद presence है। is here. उसकी उपस्थिति यहाँ It पर है। surrounds you. वो आपको घेर Well, देती even है। if you go in the valley, He is there. Yet- Even if you go in the mountain, He is there. यदि आप खाई में जाओ, यदि आप पहाड़ पर जाओ, वो वहाँ पर है। There's nothing that can separate you from the love of Christ. ऐसी कोई बात नहीं जो यीशु मसीह के प्रेम से आपको जुदा कर सकती He है। moves in ways uncertain. वो ऐसे मार्गों में कार्य करता है जो कोई मनुष्य नहीं जान And पाता। maybe you feel that He's not around, but He's here. और शायद आपको ऐसे लग सकता है कि वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन सच मानो वो यहाँ है। Just hold on. बस थामे रखो Just उसे। hold on. बस बने रहो You may वहाँ। not feel His presence, but know that He's here. आप उसकी उपस्थिति को शायद महसूस न कर पाए, लेकिन वो यही है। And so, just as He was with Shadrach, Meshach, Abednego, और जिस प्रकार वो शद्रक, मीशक और अबेदनगो के साथ था, He was also there even when Peter and the disciples were in a storm. और उसी समय और उसी तरह वो पतरस और बाकी शिष्यों के साथ भी उस तूफान के वक्त था। And something amazing happens. और कुछ बड़ी अद्भुत बात होती है वहाँ। So Peter is sitting with all these disciples in the ship, तो पतरस उस नाव में बाकी सारे शिष्यों के साथ बैठा है and the storm is hitting them and tossing them and turning them. और तूफान के पूरे चपेट में वो आकर यहाँ वहाँ पूरा नाव वो गोते खा रहा है। And now they see Jesus. और अब जाकर वो यीशु मसीह को देखते हैं। They don't recognize Him. वो पहचानते नहीं है उसे। But let's see what Peter says. लेकिन देखते पतरस क्या कहता है वहाँ। Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer. It is I, be not afraid. यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। We'll see verse number 28. 28वां वचन। And Peter answered him and said, Lord, if it is thou, bid me come unto thee on the water. पतरस ने उसे उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। So this Peter, among all the disciples, पतरस सारे शिष्यों में he's a very fickle-minded person. काफी चंचल प्रकार का ऐसा व्यक्ति है। Well, he says he loves the Lord, वो कहता है कि वो परमेश्वर से प्रेम करता है, but he's always having these two minds. लेकिन हमेशा वो द्वि बुद्धि, उसका 2 प्रकार का ऐसा मन होता है। And with a person like that, और उस प्रकार के ऐसे व्यक्ति के he's साथ so excited and he's so curious and he's so anxious about what's happening around. वो इतना उत्तेजित होता है, वो इतना उसका लक्ष्य होता है हर एक बातों पर कि आगे क्या होगा। He's so excited that he says to Jesus वो इतना उत्तेजित होता है कि वो यीशु मसीह से कहता है that call me to you, कि प्रभु आपके पास मुझे बुलाए, ask me to come. कि मुझे आज्ञा दे कि आपके पास मैं आ पाऊँ। And I just was thinking about this, और मैं इस बात के बारे में सोच रही थी and I was thinking that what was the idea? Why did Peter even say that? और मैं ये सोच रही थी कि इसके पीछे उसका क्या विचार था कि उसने ऐसा क्यों कहा। I mean, it already they knew Jesus. If it was Jesus, he was coming towards them. कि जबकि वो जानते थे कि यदि वो यीशु मसीह और यीशु मसीह उनके पास ही आ रहे थे, What was the need for him to say, Lord, tell me to come near you? फिर ऐसी क्या जरूरत थी कि पतरस ने कहा कि मुझे आज्ञा दे कि मैं आपके पास पानी पर चलकर It आ was पाऊँ। kind of illogical. वो थोड़ा सा कुछ अलग ही विचार था ऐसा, But Peter, any which ways, he says it. लेकिन पतरस कह देता है ये, Because there was something that was different about Peter. क्योंकि ऐसी कोई बात थी जो काफी विशेष और अलग थी पतरस के There was बारे something में। that was very extremely different about Peter. पतरस के विषय में कुछ बड़ी और खास और विशेष बात He थी। couldn't just sit
वो बस बैठा नहीं रह He सकता couldn't था, just sit. वो बस बैठा नहीं रह He सकता था, wanted more. वो और अधिक चाहता He था, wanted more. वो और अधिक चाहता He था। wanted an experience that the other disciples didn't think was necessary. वो एक ऐसा अनुभव चाहता था कि जो बाकी शिष्य सोचते नहीं थे कि वो जरूरी है उनके He लिए। wanted something that was out of the box. वो ऐसा कुछ चाहता था जो जितना उसका हद है उससे कई ज्यादा उसको ज्यादा And he मिल tells पाए। Jesus, call me to you. और वो यीशु मसीह से कहता है कि मुझे अपने पास बुलाइए, Ask me to come. मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आ पाऊँ, Tell me to come to you. मुझे आज्ञा दे कि मैं आपके पास आऊँ। But there was something that was deep inside of Peter that was calling him there. जो ऐसी कोई बात थी जो पतरस के अंदर काफी गहराई में थी जो उसे बुला रही थी That was वहाँ। not enough with sitting in the boat and being comfortable and being afraid in the storm. जो नाव में बैठकर आरामदायक हालत में या फिर उस तूफान के बीच में डर कर बैठने के लिए काफी नहीं थी, उसको बात कोई खींचे ले जा रही थी And that वहाँ। thing was so strong और वो बात जो थी वो इतनी ताकतवर थी that it was ready to overcome every fear. कि वो तैयार थी हर एक डर पर विजय प्राप्त करने, It was over to break every tradition. वो तैयार थी हर एक रीति रिवाज को तोड़ने। Maybe the right thing at that time was to sit in the ship, शायद उस हालात के बीच में सबसे योग्य बात वही थी कि उस नाव में बने रहे, बैठे but रहे। it was something that would broke every logic लेकिन ऐसी कोई बात थी जिसने हर एक सोच और हर एक कल्पनाओं को तोड़ दिया in order to reach Jesus. कि वो यीशु मसीह तक पहुंचे। There was a place in his life, उसके जीवन में एक जगह थी, there was a season in his life उसके जीवन में एक ऐसा समय था where he felt कि जब उसे लगा वो that he was called for deeper, कि उससे गहराई के लिए बुलाया that गया he है, was called for more. कि उसका बुलावा और अधिक के लिए See, है। everybody knew that we're going to go back, we're going to sail out of this sea from the ship. बाकी सब जानते थे कि हम सब महफूज तरह से इस जहाज से आगे जाएंगे और सुरक्षित जमीन पर And it was पहुंचेंगे। also Jesus' plan. That's the reason he was coming into the ship, into the boat. और यही बात यीशु मसीह की भी सोच थी कि यीशु मसीह इसीलिए उनके बचाव के लिए वहां पर पहुंचे थे। And that was the plan, that all of them were going to sail back into the ship and then go back. और यही तो योजना थी कि वो उस जहाज से सफर करेंगे और सुरक्षित तौर पर उस जगह पर But what पहुंचेंगे। was the need for this guy to go, what was the need for this man to go right in where Jesus, only Jesus could walk on water? लेकिन ऐसी क्या जरूरत थी कि इस व्यक्ति को, पतरस को, यीशु मसीह के पास उस गहरे पानी में चल के जाना था। Now we understand Jesus walking on water, अब हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह पानी पर चलते, but the thought of Peter walking on water, लेकिन ये ख्याल या विचार कि पतरस पानी पर चल रहा the है, thought of you and me walking on water ये विचार तुम और मैं हम पानी पर चले, is something that's different. ये कुछ काफी अलग है। Like we can digest the fact that Jesus walked on water. हम इस बात को तो समझ सकते हैं कि यीशु मसीह पानी पर चल सकते But हैं, can you digest the fact that you're called for deeper? लेकिन क्या आप इस बात को समझ पाओगे कि आपको और अधिक गहराई के लिए बुलाया गया Can है? you digest the fact that you are a person who can walk on water? क्या आप इस बात को समझ पाओगे कभी कि आपको पानी पर चलने के लिए बुलाया गया And है? so Peter, और पतरस in his hurry, उसकी जल्दबाजी में, in his wanting, in his desire to reach deeper, उसकी इच्छा कि वो और गहराई तक जा पाए, he steps out of the boat. वो उस नाव से बाहर कदम रखता है। It was unknown. वो एक अज्ञात जगह थी, It was vague. वो वहां पर काफी विचित्र था। वो It sounded scary. ये ख्याल ही काफी डरावना लग रहा था The waves tossed and turned. कि वो लहरें वहां पर उछल रही थी। It didn't look like the right thing to do. वो पानी पर चलना वो योग्य काम नहीं था उस समय। Maybe the disciples may have advised him, don't. शायद शिष्यों ने उसे सलाह दी होगी कि ऐसा मत करना, Just hold on. बस पकड़े रहे। Jesus is coming. Just hold on. Sit in the ship. Aram se, he's coming. यीशु मसीह तो आ ही रहे, तुम यहाँ पर बैठकर इंतजार करो उनका। But there was something when Jesus said, come. लेकिन ऐसी कोई बात थी जब यीशु मसीह ने कहा कि आ, There was something that could never stop Peter. कि ऐसी कोई बात थी जो पतरस को कभी रोक नहीं पाई। फिर There was something that could never stop Peter. ऐसी कोई बात थी जो पतरस को फिर कभी रोक नहीं And there पाई। was something that just pulled him out of that ship. और ऐसी कोई बात थी जिसने उसको उस जहाज से बाहर खींच लिया। It was illogical. वो शायद मनुष्य के समझ के लिए काफी फिजूल था, It didn't make sense. उसका कोई भी अर्थ नहीं बन It पाया looked scary. और वो डरावना भी लग रहा था। And it probably, it's the idea of stepping out sometimes also means losing control. और कभी कभी ये विचार कि हमको बाहर कदम रखना है, इसका अर्थ ये भी होता है कि हमारे काबू से चीज बाहर जाना। When we are placed in a situation or when we are placed in a place which is unknown, कि जब हमें ऐसी कोई जगह पर रख दिए जाते हैं जो हमारे लिए काफी अनजान या अज्ञात है, there's no control you have. तो हमारा कोई उस जगह पर या उस परिस्थिति पर काबू नहीं You होता। feel powerless. हमें
कोई भी ताकत महसूस नहीं कर पाते But हम। that's what the Holy Spirit wants, and He does. और वही बात तो पवित्र आत्मा चाहते हैं और वही बात पवित्र He आत्मा wants करते you to हैं। be undone in His presence. वो चाहते हैं कि हम उसकी उपस्थिति में पूरी तरह से आजाद रहे। He wants you to sway blindly behind Him. हम वो चाहते हैं कि हम उसके आगोश में आकर पूरी तरह से अपने आप को झोंके उसके He wants अंदर, us to surrender ourselves self to a place where He can take us anywhere. कि वो पवित्र आत्मा चाहते कि हम अपने आप को इस प्रकार समर्पित और सौंप दे कि वो हमें चलाए और ले जाए He आगे। wants us to not be afraid of the unknown, but to trust Him in every part of your life. वो चाहते कि हम किसी भी अज्ञात या अनजान विषय के बारे में डरे ना, लेकिन अपने आप को सौंपे और उस पर उस बात के लिए भरोसा रखें। As humans, we love control. मनुष्य होने के तौर पर हमें हमेशा पसंद है कि हमारे नियंत्रण या काबू में बातें हो। As humans, we love power. हम चाहते हैं मनुष्य के तौर पर हमारे पास ताकत या We सामर्थ्य want हो। everything in our power. हम हर एक बात चाहते हैं अपनी ताकत और अपनी कुव्वत में। We want everything in our control. हम हर एक बात को चाहते हैं कि हर एक बात पर हमारा काबू या Even कब्जा हो। doing things before we want to live it in our mind and then live our lives. कि जब जीवन में कोई बात करनी हो, उसको करने के पहले ही हम अपने दिमाग में उसके विषय में सोचते और उसको दिमाग में ही जी लेते While हैं। thinking of our goals, our visions, our dreams, we want to live them in our mind and then live them in reality. जब हम अपने लक्ष्य या अपने जीवन के कोई भी मकसद के बारे में सोचते हैं तो हम उसको अपने मन में जीवन में करने के पहले ही उसके मन में सोचने लगते हैं उसके But what do विषय में। you do when you're in a place where you can't see nothing? लेकिन आप क्या करते हो जब आप ऐसी जगह पर आते हो जब आपको कुछ भी नजर नहीं आता? And sometimes the Holy Spirit wants to take you to a place where you completely, solely lean on Him. और कभी कभी पवित्र आत्मा आपको ऐसी जगह पर ले जाना चाहता है जहां पर आप पूर्णता से पूरी तरह से पवित्र आत्मा पर समर्पित। Maybe stepping on that और out निर्भर of है। that boat maybe drowning Peter. शायद उस जहाज के बाहर कदम रखने से पतरस डूब सकता। Maybe stepping out of that boat, he may be tossed by the wind. शायद उस जहाज के बाहर कदम रखने के साथ वो उस हवा के झोंके से वो शायद यहाँ वहाँ गोते खा लेता। Or maybe stepping out of that boat, या फिर उस जहाज के बाहर कदम रखने से he would walk on water. वो पानी पर चल पाए। Just trust Jesus. बस यीशु मसीह पर भरोसा रखे। Come, Holy Spirit. पवित्र आत्मा आए, Take some time in your lives हम अपने जीवन में कुछ समय ले and surrender that or your heart to Lord. और अपना जो दिल है उसको समर्पित करे, सौंप दे And if परमेश्वर you feel को। that there's something in your life that calls you deeper or wants you to have more, और यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में ऐसी कोई बात है जो आपको खींचती है और गहराई के लिए, let go of that boat. तो उस जहाज को छोड़ दीजिए। Step out. बाहर कदम रखिए, Let go. छोड़ दीजिए उसे। Step out. बाहर कदम रखिए, Walk. चलिए Be swayed by the Spirit. और पवित्र आत्मा के आगोश में चलाए जाइए। Be swayed by the Spirit. पवित्र आत्मा के आगोश और सामर्थ में चलाए जाइए। Be moved by God. परमेश्वर आपको चलाए, Be pushed by God. परमेश्वर आपको आगे ले जाए, Be turned by God. परमेश्वर आपके राह को रास्ता Be दिखाए, tossed by God. परमेश्वर आपको दर्शन और आपको Lord, आगे ले even जाए। if it is a storm that you want me to go through, I'm here. कि प्रभु यदि अगर कोई तूफान है जिसके द्वारा मुझे जाना है और आपकी ये इच्छा है तो मैं जाना चाहता Come, हूँ। Holy Spirit. पवित्र आत्मा आइए, Move us आप in directions that we don't know. हमें चलाइए ऐसे दिशा में जो हम जानते नहीं है। Move us in directions that we fear to go. Help us to take those risks. हमें वो खतरे मोलने के लिए सामर्थ्य देना, Help us to move out of the box. हमें उस बक्से से बाहर Help निकलने us के लिए to सहायता move out करना, of our comfort zone अपने आरामदायक जगह से बाहर निकलने के लिए सहायता into a करना, place where you want us to be. एक ऐसी जगह पर जहाँ पर प्रभु आप इच्छा करते हो। And so Peter walks out of the boat, steps out of the boat. तो जो पतरस है वो उस नाव से बाहर कदम रखता है And the thing about stepping out of the box, और उस बक्से या फिर उस जगह से बाहर कदम रखने के विषय में बात ऐसी है कि like it's a term that's used also in our secular world. जो हमारे बाहर के जगह क्षेत्र में इस बात को हमेशा इसका जिक्र किया जाता है। Like, let's step out of the box, let's do something different, let's be different, let's make a change. These are also secular statements and phrases. कि सेक्युलर दुनिया में ऐसी वाक्य कहे जाते हैं कि चलो हम अपने जितनी भी आरामदायक जगह उससे हम बाहर कदम रखें, जो हमने नहीं किया है कुछ नया करके दिखाए, कुछ अलग कोशिश करें। But it won't make a difference if your focus is not Jesus. लेकिन ये सारी बातें करने से कोई फर्क नहीं होगा यदि हमारा जो लक्ष्य है वो यीशु मसीह ना हो तो। When Peter stepped out of the boat, हम देख सकते हैं पतरस ने उस नाव से बाहर कदम रखा as long as he was looking at Jesus, और जब तक वो यीशु मसीह को ही देख रहा था all is well.
सब कुछ सही था, all is well. सब कुछ सही है। As long as you're looking at Jesus, जब तक आप यीशु मसीह को ही देख रहे हो, all is well. सब कुछ सही होगा, All is well. सब कुछ सही होगा। Maybe things won't look right. शायद चीजें सही नजर नहीं Maybe आएंगी, things won't feel right. शायद चीजें सही महसूस नहीं कर पाएंगे, Maybe it's out of your comfort zone. शायद ये आपके आरामदायक जगह से काफी अलग But होगी। if your eyes are fixed on Jesus, all is well. लेकिन जब तक आपकी नजर, आपकी निगाह यीशु मसीह पर बंधी हुई हो तो सब बातें सही होंगी। Amen. आमीन। Fix your eyes on Jesus. अपनी आंखें आज यीशु मसीह पर Tell लगाइए। somebody, fix your eyes on Jesus. किसी को बोले कि अपनी आंखें यीशु मसीह पर Don't लगाएं, lose focus. अपना ध्यान ना हटाएं, Don't lose focus. अपना ध्यान ना हटाएं। Jesus, Jesus, Jesus. यीशु यीशु यीशु, Fix your eyes on Jesus. अपनी आंखें यीशु मसीह पर ही And लगाएं। let's see what happens further. और देखते हैं हम आगे क्या हुआ। It's such a big storm. इतना बड़ा तूफान भी आया And है what a miracle. और कितना बड़ा चमत्कार। There must be something great about Peter. पतरस के विषय में सच में कुछ बड़ी या महान Or बात he होगी, has so much faith. या फिर उसके पास इतना बड़ा विश्वास Or है, some must be saying, let's see how far he goes. या फिर कुछ ऐसा भी सोचते होंगे चलो देखते कितना दूर तक जा पाएगा ये। But something happens. लेकिन कुछ तो हुआ वहाँ, And something always happens. और हमेशा कुछ ना कुछ तो होता ही है। Tell somebody, something always happens. किसी को मुड़कर बोलिए कि कुछ तो होता ही है It हमेशा। happens to all of us. सबके साथ ऐसे होता It's है। wrong to be judgmental about poor Peter there in that moment. यहाँ पर पतरस की कहानी को लेकर इस बात में जो हुआ उसके साथ, उस पर न्याय करना थोड़ा गलत होगा। His eyes, they shift from Jesus to the storm. उसकी आंखें यीशु मसीह पर जो लगी थी वहां से हटकर तूफान की ओर चली Well, जाती है। everything was going well when he was looking at Jesus. जब तक यीशु मसीह के पास वो देख रहा था सारी बातें सही जा रही थी, But then suddenly there was a storm and there were some waves and there was some movement and his eyes and his focus shifts. लेकिन अचानक उसकी नजर यीशु मसीह से हटी क्योंकि वहां पर तूफान था, वहां पर लहरें थी और कुछ ऐसी हरकतें हुई जिससे उसका ध्यान, उसकी नजर यीशु मसीह से हट And गई। maybe he got baffled. और शायद वो वहां पर थोड़ा सा बौखला गया, And maybe he got scared. शायद वो डर गया, Or maybe he was thinking, am I really walking on water? या फिर वो अचानक ये सोचने लगा कि क्या मैं सच में पानी पर ही चल रहा हूँ। And in a moment of doubt, और उसी शक के उस समय में he drowned. वो डूबने लगा, He started drowning. वो डूबने लगा, He started falling. वो गिरने He लगा, started faltering. वो वहां पर लड़खड़ाने लगा, He started losing faith. वो विश्वास को खोने लगा। And maybe all the other disciples were looking at the scene and they were saying, we told this guy not to step out. और शायद बाकी जितने शिष्य थे उस नज़ारे को देखकर यही कह रहे थे कि हमने तो उसे कहा था कि जाना नहीं बाहर। We told this guy, Jesus is coming anyways in the ship. There's no point in going all the way there to meet him. हमने तो कहा था कि यीशु मसीह वैसे ही जहाज में तो आ ही रहे, तो वहां पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। Or probably he was in a moment या फिर वो ऐसे जगह पर या समय में था where he thought जहां पर उसे लगा that, am I really walking on water? कि क्या मैं सच में पानी पर चल रहा हूँ, Or maybe he thought, oh God, the storm is going to hit me and I'm going to fall. या फिर उसे ऐसा लगा कि अरे बाप रे अब तो तूफान मुझे मार देगा या फिर मैं तूफान की चपेट में आकर I गिर want you to जाऊंगा। notice one thing. मैं here. आपका ध्यान एक बात पर ले आना चाहती हूँ। Peter walked on water on the words of Jesus that said, come. पतरस उस पानी पर चला उस यीशु मसीह के शब्द पर जिसमें यीशु मसीह ने कहा था कि तू आ। And sometimes a storm, और कभी कभी वो तूफान, sometimes a storm कभी कभी जो तूफान है may make you forget the word of God. वो आपको जो परमेश्वर का शब्द या वचन है उसको आपको वो भुला देगा। May make you forget the promise of God. जो परमेश्वर के अभिवचन है उस तूफान के कारण आप उसको शायद भूल सकते हो। May make you forget the focus on Jesus. शायद जो लक्ष्य आपका ध्यान यीशु मसीह पर है वो तूफान की वजह से आप उसको खो सकते हो। And it happens to everybody. और ये सबके साथ होता It है। happens to the greatest people also. वो परमेश्वर के अंदर महान लोगों के साथ भी होता है। And people just waiting to see where you falter and where you fall. और लोग बस इसी इंतजार में होते हैं कि कब आप लड़खड़ाते हो, कब आप गिरते हो। But he didn't look at the disciples for help लेकिन पतरस ने सारे शिष्यों के पास नहीं देखा कि वहां से मदद आएगी, because he knew on the words of Jesus he walked. क्योंकि वो जानता था कि वो यीशु मसीह के शब्द ही थे जिसके अनुसार और जिसके वजह से वो चल पा रहा And था। he redirected his vision to Jesus. और उसने अपना भटका हुआ ध्यान फिर एक बार यीशु मसीह की ओर लगाया And he said, Lord, help. और उसने कहा प्रभु मुझे बचाइए, Lord, help. प्रभु बचाइए, Lord, help. प्रभु बचाइए। In a deferred direction, Lord, help. कि ऐसी दशा में जहां पर आपका ध्यान भटका हुआ In है a प्रभु moment of बचाइए। weakness, Lord, help. कमजोरी के समय में प्रभु बचाइए। In a moment of drowning, Lord, help. डूबने के समय में प्रभु बचाइए। In a moment of
despair, Lord, help. कि ऐसी खराब हालत में प्रभु बचाइए In मुझे, a moment of mess, Lord, help. ऐसी अस्त व्यस्त हालत में प्रभु बचाइए, Yes, Lord, I am faithless. कि हाँ प्रभु मेरा विश्वास कम हुआ है, Yes, Lord, my focus deferred. कि हाँ प्रभु मेरा जो ध्यान है वो भटका हुआ है, Yes, Lord, I'm in the middle of a sea and I'm afraid of a storm who I think is bigger than you. कि हाँ प्रभु मैं समुद्र के बीच में फंसा और एक तूफान मेरे सामने और मेरा ध्यान हट गया है, But now my eyes are fixed again on you. लेकिन प्रभु अब मैंने अपना दृष्टि और अपनी नजर प्रभु आप पर लगाई है, Lord, my heart is come back to you. अब मेरा दिल फिर एक बार प्रभु आपके पास लौट आया And है, I'm coming in surrender and humility saying, Lord, help. और मैं पूरी नम्रता में और पूरे समर्पण के साथ आपके पास आ रहा हूँ आपकी मदद मांगने। And just when Peter said so, और जब पतरस ने ये बात कही, just when Peter said so, और जब पतरस ने ये बात कही, well, beautiful. बड़ा खूबसूरत था। The psalmist says, I भजन- cried out unto the Lord and he heard me. भजन संहिता लिखने वाला कहता कि मैंने परमेश्वर से पुकार की और परमेश्वर ने मेरी विनती को सुनी। Jesus caught him. यीशु मसीह ने उसको पकड़ लिया, Jesus caught him. यीशु मसीह ने उसे पकड़ लिया, Jesus always catch you. यीशु मसीह हमेशा आपको पकड़ लेगा, Jesus has got your back. यीशु मसीह ने आपको संभाल कर रखा है, Jesus has got your back. यीशु मसीह ने आपको संभाले रखा है, डरिएगा नहीं। Jesus is holding on to you. यीशु मसीह आपको संभाल कर पकड़ कर रखता है। You think you have the faith. आपको लगता है कि आप है वो जिसके पास विश्वास Yes, है, you do have. आपके पास विश्वास तो है, But for every time you fall short, लेकिन हर एक बार जब आप कम या फिर कमजोर पड़ जाते हो, His grace is sufficient. उसका अनुग्रह वो काफी Let me है, tell you, His grace is sufficient. उसका जो अनुग्रह है वो काफी है। And Jesus picks him up और यीशु मसीह उसको वहां पकड़ and takes संभाल him लेते back हैं into the boat. और फिर एक बार उसको वहां से ले जाकर उस जहाज में बिठाते हैं। And you know, why all this? पता है ये सारी बातें क्यों? When I was thinking of it, why, Lord, what was this reason? Why Peter had to go out and meet you in the water when you were already coming in the ship? और मैं सारी इस पूरी कहानी के विषय में सोच रही थी कि क्यों प्रभु, क्यों पतरस को बाहर जाना था, क्यों ये सारी बातें होनी थी और ऐसा क्यों सब। But there was an experience that Peter had which none other, no disciple ever had. लेकिन इस पूरी बात में एक ऐसा विशेष अनुभव था जो पतरस को हुआ, जो किसी भी शिष्य को नहीं हो पाया। That deeper calling, वो गहराई का बुलावा, that deeper desire, वो गहराई की इच्छा, that deeper destiny. वो गहराई की वो मंजिल, Something that takes you deeper. ऐसी कोई बात जो आपको गहराई में ले जाती That है, experience वो अनुभव where you see Jesus or you know Jesus कि जहाँ पर आप यीशु मसीह को देखते हो या यीशु मसीह को जान पाते हो, will go beyond than just sitting in the ship and waiting for him. वो जहाज में बैठकर उसके इंतजार में बैठने से कई ज्यादा आगे और पार चले जाएगा। Let me encourage you this morning मैं आज सुबह आप सबको उत्तेजन करना चाहती हूँ that take that step कि वो कदम उठाइए of walking deeper into a relationship with Jesus. कि यीशु मसीह के साथ उस नाते में और गहरे में चलने के लिए वो कदम उठाइए। There was nothing wrong about sitting in the ship and waiting for Jesus and waiting for his presence to come in there. उस जहाज में बैठे रहना और यीशु मसीह के इंतजार करना, इस बात में कोई भी गलती नहीं थी, There was nothing wrong with that. इसमें कुछ भी गलत बात नहीं And थी। Jesus would have come and they would have sat in the ship and he would have calmed the storm and they would have gone. और यीशु मसीह उस जहाज में आते थे, उस तूफान को शांत करते थे और वो सही सलामत उस जगह पर पहुंच भी सकते थे। But sometimes some dramatic things give us experiences that only and only encounter us in special ways with God. लेकिन कभी कभी ऐसी असाधारण परिस्थितियां निर्माण होती है या हो जाती है जिसके द्वारा हम परमेश्वर का एक विशेष अनुभव कर पाते हैं। If you remember in the beginning, before Jesus walked into the ship, कि यदि आपको याद हो शुरुआत में कि जब यीशु मसीह प्रकट हुए नहीं थे और उस जहाज के पास चलकर नहीं आ and रहे the थे, storm had hit the ship, और जब तब उस समय वो तूफान आया था और जहाज तूफान की चपेट में आया था, the disciples were scared, baffled, they probably lost hope, they were faithless. वो जितने भी शिष्य थे वो पूरी तरह से डर गए, उन्होंने अपना विश्वास खो दिया था। But look at the situation now. लेकिन अब जाकर इस हालात को देखिए When Jesus brought Peter back into the boat, कि जब यीशु मसीह पतरस को लेकर उस नाव में पहुंचे, they all worshipped Jesus. सब ने मिलकर यीशु मसीह की आराधना की Let your storm change into praise. कि जो आपके तूफान है वो स्तुति में Let परिवर्तित हो your जाए, fear change into praise. वो जो आपके जो भी डर की बातें हैं वो तूफान वो परिवर्तित हो जाए स्तुति में। Move into a dimension of praise. आप एक ऐसी दिशा में
चले जाओ जहाँ पर आप स्तुति कर पाओ। Let your worship, let your praise never cease. कि जो आपकी आराधना है, जो स्तुति है, वो कभी रुक ना पाए। Every moment of your life, आपके जीवन के हर एक समय, every moment of your life, आपके जीवन के हर पल में wait for Jesus to turn into a moment of worship for कि you. यीशु मसीह के इंतजार करे कि वो उस घड़ी को बदले और वो आपका एक स्तुति आराधना का समय बदल जाए। Amen. आमीन। And I want to pray with you this morning, और मैं आज सुबह आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहती knowing हूँ, ये जानते हुए that our God, He is well able. कि हमारा परमेश्वर वो काबिल है, Well, our God is more than enough. हमारा परमेश्वर काफी है। Our God's never going to leave us. हमारा परमेश्वर हमें कभी छोड़ेगा नहीं, He's always going to show up. वो हमेशा प्रकट होगा और वो आएगा। But we want to take that step, Lord, in faith. लेकिन हम विश्वास में वो कदम उठाना चाहते We हैं want to go places, Lord, where you want to take us. कि हम प्रभु ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ पर प्रभु आप ले जाना चाहते We हैं। want to be driven by your Spirit. हम आपकी आत्मा के अगुवाई में चलाए जाना चाहते We हैं। want to lose control. हम अपना काबू खो देना चाहते हैं। Make us undone, Lord. प्रभु हमको अपने समान बना प्रभु। Keep us undone, Lord. प्रभु हम जो सोचते प्रभु उसमें से बाहर निकाल हमें Unwind प्रभु। us. और प्रभु जिस बातों से हम फंसे प्रभु उन सब से प्रभु हमें अलग करना Move प्रभु। us. और प्रभु हमें चलाना Shift प्रभु। us. हमें प्रभु तब्दीली देना That we प्रभु may walk deeper कि प्रभु हम और अधिक गहराई में चल पाए। in sight of you. प्रभु आपके सामने Come, Lord. प्रभु आइएगा। Have your way. प्रभु अपना मार्ग बनाइएगा। Come, Holy Spirit. पवित्र आत्मा आइए। Have your way. प्रभु अपना कार्य कीजिए And make of us, Lord, और प्रभु हमसे बनाइए। make of us, Lord, प्रभु हमसे वो बनाइए प्रभु, people who dare to walk on water. ऐसे लोग प्रभु जो हिम्मत रखे उस पानी पर चलने के लिए। Thank you, Jesus. We praise you. We worship you. धन्यवाद यीशु, हम आपकी स्तुति और आराधना करते We हैं। ask of you, Holy Spirit, take complete control. पवित्र आत्मा हम मांगते हैं प्रभु पूरा नियंत्रण पूरा ताबा लीजिएगा। And we rejoice in the fact that you will never leave us. और हम प्रभु इस बात में प्रभु आनंद मनाते हैं कि प्रभु कि आप हमें कभी छोड़ोगे नहीं, कभी त्यागोगे नहीं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। I hope you've been blessed, और मुझे आशा है कि आप सब आशीषित हुए हो and happy Sunday to you. और आपको ये रविवार काफी आनंदित और आशीर्वादित हो। Let go and trust God and see where He takes you. और अपने आप को आजाद करें और परमेश्वर में झोंक दे और देखिए कि परमेश्वर आपको कैसे चलाएगा। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। यावेळेस आपण सर्वजण आपल्या प्रभू भोजनाच्या विधीकडे येऊया। Let us all come together as we partake of the communion service. आपल्याकडे पवित्र शास्त्र असेल तर आपण पहिले करंथीकरास पत्र याचा 11वा अध्याय If we have our Bibles, let's turn to 1 Corinthians chapter 11. आणि 23 वचनापासून आपण पाहूया। And from verse 23 we will read. कारण जे मला प्रभूपासून मिळाले तेच मी तुम्हाला सांगितले आहे की ज्या रात्री प्रभू येशूला धरून देण्यात आले त्या रात्री त्याने भाकर घेतली, आभार मानून ती मोडली आणि म्हटले, हे माझे शरीर आहे, तुमच्यासाठी आहे, माझ्या स्मरणात हे करा। मग भोजन झाल्यावर त्याने प्याला घेऊन तसेच केले आणि म्हटले, हा प्याला माझ्या रक्ताने झालेला नवा करार आहे, जितक्यांदा तुम्ही हा पिता तितक्यांदा माझ्या स्मरणात हे करा। कारण जितक्यांदा तुम्ही ही भाकर खाता व हा प्याला पिता तितक्यांदा तुम्ही प्रभूच्या मरणाची तो येईपर्यंत घोषणा करिता। म्हणून जो कोणी अयोग्य प्रकारे ही भाकर खाईल अथवा प्रभूचा प्याला पेईल तो प्रभूचे शरीर व रक्त या संबंधाने दोषी ठरेल। म्हणून माणसाने आत्मपरीक्षण करावे आणि मग त्या भाकरीतून खावे व त्या प्याल्यातून प्यावे। कारण त्या शरीराचे मर्म ओळखल्याशिवाय जो खातो व पितो तो खाण्याने व पिण्याने आपणावर दंड ओढून घेतो। तुमच्यामध्ये पुष्कळ जण दुर्बळ व आजारी आहेत आणि बरेच निद्रेत आहेत। याचे कारण हेच, आपण आपला न्यायनिवाडा केला असता तर आपल्यावर दंड ओढवला नसता। ज्या अर्थी आपल्यावर दंड ओढवला आहे त्या अर्थी आपल्याला प्रभूकडून शिक्षा होत आहे, अशा हेतूने की जगाच्या बरोबर आपल्याला दंड आज्ञा होऊ नये। For I have received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. So then whoever eats this bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord.
Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment upon themselves. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. But if we were more discerning with regards to ourselves, we would not come under such judgment. Nevertheless, when we are judged in this way by the Lord, we are being disciplined, so that we will not be finally condemned with the world. यावेळेस आपण प्रार्थना करूया. Let us pray. पवित्र 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 Holy, 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 इस्रायलाच्या सर्व समर्थ देवा, God Almighty of Israel, आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना करतो. we pray unto you. ही तुझी आज्ञा आहे Lord, this is your Ki- commandment, की तुझ्या स्मरणात आम्ही हे घ्यावं. that we do this in remembrance of you. ही भाकर जो तुझं शरीर आहे, The bread which is your body, हा प्याला जो तुझं पवित्र रक्त आहे, and this cup which is your precious blood. तो आम्हासाठी Lord, you gave it for us 2000 वर्षापूर्वी 2000 years ago दिलेला आहे, on that cross, आशीर्वादित केलेला आहे. and you blessed it. या सकाळी Lord, this morning आमचे सर्व चुका, we ask you, you forgive all our sins अपराधांची क्षमा कर. and all our shortcomings. आणि हे भाकर आणि प्याला And Lord, let this bread and wine, आम्हा प्रत्येकाच्या शरीरासाठी, let it be to our bodies, मंडळीसाठी, for the church, कुटुंबासाठी for the family, आशीर्वाद a cause of आणि blessing आरोग्याचं कारण and a होते. cause of healing. धन्यवाद कर. Thank you, Lord. तू म्हटलास Lord, you हे said, भाकर आणि हा प्याला घ्याल have this bread and this wine तर माझी घोषणा करा. and proclaim प्रभू, my life. हे भाकर घेऊन, Lord, as we partake of this bread, हे प्याला घेऊन as we partake of this cup, आम्ही तुझ्या येण्याची घोषणा करावी, we proclaim your coming. असं तू हो दे. Lord, let it be so. आशीर्वादित कर आम्हा Bless प्रत्येकासाठी. us all, O God. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने In Jesus' name, आम्ही प्रार्थना करतो. we pray. आमेन. Amen. ख्रिस्ताचं शरीर 2000 वर्षापूर्वी तुमच्या आणि माझ्यासाठी मोडलं गेलेलं आहे. The body of Christ was broken for you and me 2000 years ago on the cross of Calvary. ख्रिस्ताचं रक्त 2000 वर्षापूर्वी तुमच्या आणि माझ्यासाठी देण्यात आलेलं आहे. The blood of Jesus was shed for you and me on the cross of Calvary. यावेळेस आपण सर्वजण भाकर आणि प्याला घेऊया. Let us all participate in the bread and wine. प्रार्थना करूया. Let us pray. पवित्र पिता, Holy God, प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने पुन्हा एकदा आम्ही तुला धन्यवाद देतो. once again we thank you in the name of Jesus आज सकाळच्या वचनासाठी. for this morning's word. हे वचन Lord, let this word, आम्हा प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये let it work in our lives 100 पट पीक आणू दे. and bring 100-fold fruit, 100 पट पीक आणू दे 100-fold fruit आणि 100 पट पीक आणू and दे. 100-fold fruit. धन्यवाद करतो. Thank you, हा Lord. आठवड्याचा पहिला दिवस Lord, the first day of this week, तुला समर्पण केले गेले. we surrender to you. या सप्त्यावर Lord, we ask you तुझं upon this राज्य, week, let your तुझी reign, इच्छा, let your will, तुझी योजना let your purpose, आणि तुझंच गौरव and let your glory तुझ्या हाती देतो. be committed into your विशेष hands. तुझा हात Lord, especially we ask you, let your hand be upon यरुशलेमेवर असू दे. upon Jerusalem. इस्रायल लोकांना शांती Upon, दे. Lord, let there be peace in Israel. विशेष तुझा हात Especially we ask you, आमचे Lord, पास्टरवर असू let दे. your hand be upon our pastor, आमच्या वहिनीवर असू दे. upon Sister Esther, तबितावर असू दे. upon Tabitha, आणि ओबेदवर and असू दे. Obed. आम्ही प्रार्थना We करतो. pray, Lord, जे पुणे शहराचे बाहेर आहेत Lord, all those who are outside Pune सगळ्यांवर city, तुझा हात असू let दे. your hand be upon them. सर्व मंडळीला तुझ्या हाती Lord, we देतो. commit the entire church into your hands. प्रत्येकासाठी We ask you, हा Lord, सप्ताह let this week be a blessing आशीर्वादित for कर. every one of या us. सप्त्याचे Lord, for this week, सर्व मीटिंग, all the meetings, सर्व सेवा, all the सर्व ministries, सेवा करणाऱ्यांवर all the ministers, तुझा हात असू दे. we ask you, let your hand be विश्वासाने upon आम्ही them. प्रार्थना करतो. In faith we pray. धन्यवाद करतो. Thank you, Lord. परमेश्वर तुम्हा सर्वांना आशीर्वाद May the दे. Lord bless you. मग तुमचे संरक्षण May करो. He protect you. परमेश्वर आपला मुख प्रकाश तुम्हावर May पाडो He shine His face upon व you. तुमच्यावर कृपा करो. And may He be gracious to परमेश्वर you. आपला प्रसन्न मुख तुम्हाकडे करो May He shine His व तुम्हा countenance upon you. शांती देव. And may He give you peace. इस्रायलाचा यावे देव
Let the God of Israel तुम्हाला आशीर्वाद देव. bless you. देव जो बाप, God our Father, देव जो पुत्र, God the Son, देव जो पवित्र and आत्मा, God the Holy Spirit. येशू देवाच्या In नावाने, Jesus' name, देवाचा सेवक या नात्याने as a man of God, मी देवाच्या आणि पास्टरच्या हाताखाली under God and under our pastor's hand, तुम्हाला हे आशीर्वादाची कबुली I करतो. bless you. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या In नावाने. Jesus' name. आमेन. Amen. सगळ्यांना प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord to all of परमेश्वर you. तुम्हा सर्वांना आशीर्वाद. May God bless you all.